Welcome students, welcome to computer class. I am your teacher Nitish Kumar. So this is the video for class 9. Today we read part 3 of unit 3. We already created 2 videos on part unit 3, part 1 and part 2. Today we read and today we know the part 3 video of unit 3, word processing basics. Okay, this is the part 3 video. In first video we learn how to start, how to take a new window, how to save a MS Word, open, select text. In second video edit a document, check spelling, grammar, font, format, bullet, text, elision, text format, so many things. There is so many things we read in the previous 2 videos, part 1 and part 2 of the unit 3. Now today we gonna start. Today we start our part 3 video where we read cover pages, blank pages, tables, how to print a document and mail merge. He is also understand this thing. So this is the introduction. We already read this introduction in 2 videos, so I don't think it is important to you, but we read one more time. Word processing is an application software. It is allowed to know as it is also known as the MS Word software. It used to create later documents for meetings and offices. बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल लेटर्स लिखना है, डॉक्यूमेंट्स लिखना है, ऑफिस के लिए कुछ पेपर्स तैयार करने हैं. So many things we are using MS Word. Actually for writing your questions we also using this same thing. This is the syllabus. I think this whole thing from session 1 to session 12 we have already completed. Today we complete session number 13, 14, 15, 16 and 17. Okay. So now we start this one. This is the step for starting MS Word in Windows 7. Why I am showing this step to you how many times or so many times? Because I am using Windows 8 in my PC. I am using Windows 8 in my PC. That's why I can't show you how to start the MS Word in Windows 7. So I am showing you the step of Windows 7. And remember one thing, every time I am told you, remember the logo. It will help you. ये logo आपको हर बार help करेगा, इसलिए लोगों को याद रखना है. This is the step. Click on Start button, All Program, find and select Microsoft Office, click on MS Word. So we already talked about this step in our previous 2 videos. So we move forward. So this is the same Word document which we read in previous class. So in the same way we have to use the cover page and blank page first. In a same page, अब एक पेज है मेरे पास, इसमें मुझे कोई कवर लगाना है. ठीक है, यू नो एवरीथिंग हैव अ कवर. हर एक फाइल के ऊपर एक कवर होता है जिसको हम लोग इंडेक्स करते हैं. ओके, कुछ डिजाइनिंग पेज भी कभी कभी हम लोग डालते हैं ताकि वो ज़्यादा इम्प्रूव लगे. तो जैसे आप लोग प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर में एक बढ़िया सा मस्त सा कवर डालते हैं. ठीक है, सो आई एम यूजिंग द सेम कवर. सो हाउ कैन वी यूज द सेम कवर? फॉर डूइंग दिस वन वी हैव टू गो इन इंसर्ट टैब. आई एम गोइंग इन इंसर्ट टैब एंड चूज द कवर पेज फ्रॉम द पेजेस ग्रुप. चूज द कवर पेज फ्रॉम द पेजेस ग्रुप. पेज ग्रुप में जा करके हम लोग कवर पेज को चूज करें. So this is our cover page. I am clicking on it. It takes some time. Now you see there is so many cover is open here. बहुत सारे कवर्स हैं
जो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ना यू सी दिस कवर, देयर इज सो मेनी, आई एम यूजिंग दिस वन, मैं इसको यूज करता हूँ। तो ये कवर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कवर लग गया है। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ कवर कैसे लगेगा। गो इन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पेज ग्रुप, गो इन कवर पेज ऑप्शन, क्लिक हियर, नाउ इट्स ओपन, चूज द कवर विच यू वांट। सबको खुलने के बाद ये थोड़ा काम करेगा, ठीक है। तो सारे पे कवर्स खुल गए, आपको जो चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, अगर इंटरनेट कनेक्ट हो तो आपको और भी बहुत सारे कवर पेज मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 हमने डाउनलोड कर रखे हैं, तो आप चाहें तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए तो मैंने उसका यूज़ कर लिया, ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक कवर पेज आ गया है। इसमें कुछ चीज़ें हमको मिल जाती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल देना है, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल मैं दे देता हूँ, ओके। कुछ सब टाइटल दे देते हैं, जैसे कि ABC, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। नाउ द ऑथर नेम, ऑथर नेम यहाँ पे दिया गया है, दिस इज माय नेम सिग्नेचर। डेट, अब क्या है कि डेट हम यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं, सिंपली क्लिक हियर, डेट खुल गया। आज का डेट ये आप चूज कर सकते हो, प्रीवियस डेट भी चूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे आज का डेट चूज करना है तो मुझे टुडे पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आज का डेट आ गया। उसके बाद जो भी आपको कोर्स टाइटल व्हाटएवर जो आपको फिल करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज अ कवर। सो कवर में इतना ही था। ब्लैंक पेज, हाउ टू टेक अ ब्लैंक पेज। How to take a blank page? For taking a blank page, you have to follow 2 rules. 2 rules को follow करना होगा blank page लेने के लिए, and you have to always remember these rules. इन rules को आपको हमेशा याद भी रखना होगा, ठीक है। So क्या है ये rules? पहला रूल है, अगर आपको पेज जो रिटन पेज है उसके ऊपर चाहिए तो सबसे पहले जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, द फर्स्ट टेक्स्ट, उसके पहले आपका कर्सर होना चाहिए। पहला रूल यही है। चलिए अब मेरा कर्सर मान लीजिए यहाँ है, मुझे फर्स्ट जो एक ब्लैंक पेज चाहिए, इन दोनों पेज के बीच में चाहिए, तो मुझे कर्सर स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो मैंने कर्सर स्टार्टिंग में रखा है और मैं सिंपली ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। कहाँ है ब्लैंक पेज? इंसर्ट टैब में, पेज ग्रुप्स के अंदर। नाउ यू सी, हमको ब्लैंक पेज मिल गया है, हमको ब्लैंक पेज मिल गया है, मिला ना बिल्कुल यहाँ पे। नाउ द रूल नंबर 2, अगर हमको पेज जो है वो नीचे चाहिए, ठीक है, पेज जो लास्ट पेज है उसके नीचे चाहिए, तो उसके लिए 2 तरीके, ठीक है। पहले तो लास्ट टेक्स्ट के पास चले जाइए, ठीक है, उसके लास्ट में क्लिक करेंगे, गो इन अ लास्ट टेक्स्ट एंड एट द लास्ट ऑफ दैट पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे क्लिक करना है एंड सिंपली गो इन इंसर्ट टैब, चूज द ब्लैंक पेज ऑप्शन एंड यू हैव द ब्लैंक पेज। बट वी कैन ऑल्सो यूज द पेज ब्रेक ऑप्शन, हम लोग पेज ब्रेक ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, नाउ वी क्लिक द ब्लैंक पेज ऑप्शन, ओके। नाउ वी हैव वन मोर ब्लैंक पेज, हमको एक और ब्लैंक पेज मिल जाता है। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द ब्लैंक पेज। Now, our next topic is table. How to use a table and how can we use a table? How can we feed a table? How can we insert the data in table? How can we modify a table? There is so many ways. So many questions arise in your mind when we use the table. So I am going to clear one by one your problems. So I am taking a table here. मैं यहाँ पर एक टेबल लूँगा, लेकिन पहले मैं इस साइज को थोड़ा कम करना चाहता हूँ, वरना बहुत बेकार टाइप का टेबल आएगा। नाउ फॉर टेकिंग अ टेबल, गो इन इंसर्ट टैब, मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, टेबल्स ग्रुप में, इन योर टेबल्स ग्रुप वी हैव द टेबल, सिंपली क्लिक हियर एंड चूज द बॉक्सेस एज यू वांट एज अ टेबल। जैसा भी हमको टेबल चाहिए उसमें हम बॉक्सेस को चूज करके
भी ले सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो चूज द बॉक्सेस फॉर क्रिएट योर टेबल। ठीक है, तो मैंने एक बॉक्सेस वे में चूज करके अपना टेबल बना लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए हमको जो टेबल्स चाहिए वो बॉक्सेस में अवेलेबल ना हो, मान लीजिए यहाँ पे तो 15 होंगे, 10 होंगे, लेकिन हमको उससे ज़्यादा चाहिए, तो सो फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, go in a insert tab one more time, choose the table option and go in a insert table option। उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, insert table option। now you see where we can feed the number of column and number of rows। तो मैं यहाँ पे number of column डालता हूँ, मैंने number of column डाल दिया है। now मैं number of row डाल रहा हूँ, ठीक है, एंड देन सिंपली क्लिक द ओके। नाउ यू सी वी हैव द टेबल, हमको टेबल मिल गया है। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम डाले, नंबर ऑफ रो डाला और कॉलम मिल गया। व्हेन वी हैव अ टेबल, पहले भी हम लोग किए थे, जब हम फोटो लेते थे, कुछ भी लेते थे, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा टैब आता था। उसी तरह से व्हेन वी क्रिएट अ टेबल, वी आल्सो हैव टू एक्स्ट्रा टैब्स known as design and layout। design and layout, these are the tables tool, it's written on the top। okay, so this is the table। so first of all I am using the design tab। चलिए design tab में क्या क्या है हमारे लिए देखते हैं। there is so many design we can use with our table। ठीक है, मैं इस डिजाइन को मान लीजिए चूज करना है, आपने इसे चूज कर लिया, मुझे ये चाहिए, मैंने ये चूज कर लिया। so this is the way how can we use our table। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसमें डेटा भी फीड करके मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, दिस इज द टेबल हेडिंग, और हर एक में आप दे सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैं आईडी दे देता हूँ, स्टूडेंट आईडी, फिर थर्ड वाले में दे देता हूँ रोल। ठीक है, फिर क्लास। आप एक चीज़ और देखेंगे, जिस तरह से मैं कॉलम्स डाल रहा हूँ वो अपना साइज खुद ब खुद एडजस्ट भी कर लेता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है हमारे काम करने के लिए। एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमें बाकी का यूज़ नहीं है, तो उसके साथ हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो डिलीट वाला प्रोसेस हम लोग करके दिखाता हूँ मैं। फॉर डूइंग डिलीटिंग ऑल दिस थिंग्स, सिंपली सेलेक्ट ऑल दिस थिंग्स एंड गो इन अ लेआउट। आप लेआउट से भी डिलीट कर सकते हो। सेलेक्ट किया हुआ मैंने और मैं डिलीट में जाऊंगा, डिलीट। अच्छा, ये पूरा टेबल को डिलीट करने के लिए था, माय मिस्टेक। फिर से मैं लेआउट में जा रहा हूं। डिलीट में हमको किसको डिलीट करना है, डिलीट रो को, सारे रो को डिलीट कर दिया इसने। तो अगर आपका ये सारा काम नहीं बन रहा है तो सिंपली क्लिक द बैक स्पेस, selected calls left। now you see your work is done। so this is the way how can we delete the columns which we don't need। now the feeding of data, एक डेटा भी फीड करते हैं। राम, इसका कोई आईडी है, ये इसका आईडी है, उसका रोल नंबर है, क्लास है, क्लास है, एड्रेस है, एंड देन इसका फोन नंबर। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी फीड द डेटा। इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नाउ हाउ कैन वी यूज द लेआउट टैब। अब लेआउट टैब का क्या यूज है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट वन मोर कॉलम एट हियर, सो सेलेक्ट द कॉलम। मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। आई एम गोइंग इन लेआउट टैब, मैं लेआउट टैब में जाता हूँ और जैसे कि मुझे इंसर्ट लेफ्ट चाहिए, इंसर्ट राइट चाहिए, तो मैंने जो सेलेक्ट किया उसके राइट में चाहिए, देन आई क्लिक ऑन इंसर्ट राइट। नाउ यू सी वी हैव वन मोर कॉलम, एक कॉलम हमको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको कुछ डेटा डालते हैं और ये एडजस्ट हो जाता है। नाउ हाउ कैन वी टेक इंसर्ट रो। मुझे एक रो चाहिए तो मैंने सेलेक्ट किया है एक रो को, लाइन एक सेलेक्ट होना चाहिए। देन मुझे उसको ऊपर चाहिए था तो इंसर्ट एबव। ओके,
और अगर नीचे चाहिए देन इंसर्ट बिलो। देखिए एक इंसर्ट बिलो मिल गया हमको। अभी भी हमको एक इंसर्ट अबव चाहिए तो उसमें भी हम कर सकते हैं। अच्छा, देयर इज अ पेज, हाँ वो नीचे चला जाता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इंसर्ट अबव वाला ऑप्शन एंड इंसर्ट बिलो वाला ऑप्शन। ओके, so this is your table, and now how can we print a document? For printing a document it's very simple. Go in a file tab, simply click the print option. Now there is so many options. Number of copy, you can change the number of copy. You can select the printer, आप अपना प्रिंटर भी चूज कर सकते हो, जैसे मैं क्यूट पीडीएफ राइटर चूज करता हूँ। प्रिंट ऑल पेजेस, क्या हमको सारे पेजेस करने हैं? अगर आपको सारे नहीं करने हैं तो आपको पेज नंबर देना होगा। जैसे मुझे पेज 1 सिर्फ करना है तो मैंने पेज 1 दे दिया। प्रिंट वन साइड, अगर आपको वन साइड टू साइडेड चाहिए देन वी कैन ऑल्सो चूज द प्रिंट द बोथ साइड, लेकिन हमको वन साइडेड चाहिए, मैंने वन साइडेड कर दिया। तो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द प्रिंट ऑप्शन। चलिए प्रिंट बटन दबा के देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं। प्रिंटिंग वे में जा रहा है। इट्स टेकिंग अ फ्यू सेकेंड्स फॉर प्रिंट आउट। नाउ यू सी वी हैव द प्रिंट आउट। ये आपके सामने आ गया, दैट मीन्स वी हैव द प्रिंट आउट, हमारा निकल चुका है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द MS Word in here. Now the last topic is mail merge. So for doing mail merge, I am taking a fresh new page. Now for doing mail merge, you have to take a fresh new page. हम लोग को एक न्यू पेज चाहिए, तो मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। मैंने ले लिया एक न्यू पेज फॉर मेल मर्ज। और इसके लिए हमको क्या करना है? फॉर डूइंग मेल मर्ज यू हैव टू गो इन मेलिंग्स टैब। यू हैव टू गो इन मेलिंग्स टैब, तो हम मेलिंग्स टैब में चले जाएंगे। एंड फॉर द डूइंग अ मेलिंग्स टैब यू हैव टू यूज द सेलेक्ट रेसिपिएंट ऑप्शन। यहाँ पर हम किसको चूज करेंगे? सेलेक्ट रेसिपिएंट ऑप्शन को। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिसको हम चूज कर सकते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज, और फिर यहाँ पे अपना लेटर टाइप का हमको पेज चाहिए तो हम लेटर टाइप का चूज कर लेंगे। मान लीजिए हमको ईमेल थ्रू भेजना है तो हम लेटर टाइप का चूज कर सकते हैं। तो चलिए लेटर टाइप का ही चूज कर लेते हैं। ओके, सेलेक्ट रेसिपिएंट, गो इन सेलेक्ट रेसिपिएंट। तो देयर इज 3 ऑप्शन इन सेलेक्ट रेसिपिएंट, वेयर वी हैव द सेलेक्ट रेसिपिएंट इन मेलिंग्स टैब, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। वी हैव 3 ऑप्शन, टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड चूज फ्रॉम आउटलुक कॉर्नर। सो आउटलुक कंटेंट तो वो तो अलग बात हो गई, चलिए उसे छोड़ देते हैं। टाइप न्यू लिस्ट एंड यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। सो टाइप न्यू लिस्ट, हम लोग को एक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं। ऐसे भी ऑल्सो कैन यूज द यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहाँ पे भी जाके हम लोग लिस्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 2 बने हुए हैं, D एंड F, तो इसको छोड़िए हम नहीं यूज करते हैं। वी हैव टू क्रिएट वन मोर फॉर अस। एक्चुअली होता क्या है मेल मर्ज, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। मेल मर्ज means when I want to send the data or send an invitation letter to so many people with his name. अगर हमको 100 लोगों को इनविटेशन भेजना है उनके नाम, एड्रेस, कंपनी नेम, फोन नंबर के साथ, तो क्या होगा? हमको उनका नाम, एड्रेस, कंपनी नेम बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए वो मेरे कस्टमर्स है तो उनका सारा डेटा तो हम रखे होंगे ना। तो अगर हम डेटा रखे हुए हैं तो उस डेटा को यूज करते हुए अगर हम मेल मर्ज बनाते हैं तो हमको फिर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग डेटा इंटर करना भी सीखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग डेटा फिल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग टाइप न्यू लिस्ट में आए हैं। ठीक है, चलिए एक डेटा फिट करते हैं, एक नहीं एक्चुअली हम लोग 3 डेटा फिट करेंगे यहाँ पे। फॉर गोइंग इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन प्रेस द टैब, okay, tab button from the keyboard. It's always happen on the upper side of caps lock. caps lock के ऊपर आपको टैब मिलेगा, उसी को दबाना है आपको नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। इनका नाम है मिस्टर AJ, इनका लास्ट नेम है कुमार, कंपनी नाम है इनका AJ लिमिटेड। ऐसे जरूरी नहीं कि आप सारे फील्ड भरें, ठीक है।
एड्रेस कुछ भी दे देते हैं, सेकंड एड्रेस भी कुछ भी दे दीजिए। एंड नंबर 2 में सिटी इनका दे देते हैं, ठीक है। स्टेट दे देते हैं, पिन कोड भी कुछ दे देते हैं, कंट्री भी दे दिया मैंने। आप चाहें तो कोई फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। ओके, मैं ईमेल एड्रेस मान लीजिए, चलिए कुछ छोड़ना तो मैं ईमेल एड्रेस छोड़ देता हूँ। आप चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं छोड़ता हूँ। अब एक एंट्री करने के बाद मैं न्यू एंट्री कैसे करूँगा, उसके लिए आप या तो टैब कंटिन्यू दबाती चाहिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप न्यू एंट्री करके भी न्यू एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे मिल गया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वन मोर टाइम अगेन, मिस्टर रवि एड्रेस, कंपनी नेम एक्चुअली, एड्रेस मैं यहाँ पे रॉन्ग डिटेल दे सकता हूँ, दे रहा हूँ फिलहाल आपके लिए। आप चाहें तो करेक्ट डिटेल भी भर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी टू फिल द रॉन्ग डिटेल। ओके, चलिए लास्ट डेटा को भी फिल कर लेते हैं हम लोग। कम से कम 3 डेटा रहना चाहिए, अच्छा लगता है। Okay, so this is the when I fill the data. When you fill the data, your filling data is complete, then simply click in OK. उसके बाद हम लोग कहाँ दबाएंगे, OK को। और जो भी हम सेव कर रहे हैं तो नाम याद रखना है, आप जो सेव किए हैं अपना जहाँ सेव किए हैं उस जगह को याद रखना है। माई डेटा सोर्स में हम सेव कर रहे हैं, सो ये सी ड्राइव में आप कहीं और भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डी ड्राइव में करना था, मैं वहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना जो डेटा है वहीं पर रखता है, ठीक है। तो मैं चलिए जी में ही कर देते हैं। तो मैं जी में सेव कर रहा हूँ, इसको कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4D इसका नाम दिया है और सिंपली क्लिक ऑन सेव बटन, ये सेव हो गया। चलिए हमारे उसी पेज पे चलते हैं, वाइट वाले पेज पे। ये हमारा आ गया। वी हैव टू गो इन मेलिंग्स टैब, सेलेक्ट रेसिपेंट में जाना है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, एंड जी में हमने सेव कर रखा था, गो इन जी, यूज डी। ना यू सी, जब पहले हम लोग यहाँ आए थे तो ये सारे ऑप्शन हाइड थे, ये सारे ऑप्शन हाइड थे। अब क्या है, ये सारे ऑप्शन अनहाइड हो गए। तो अब चलिए हम लोग इनविटेशन लिखते हैं। चलिए इनविटेशन लिखते हैं, तो इनविटेशन लिखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका साइज में बड़ा कर दूं, 2 अब मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाऊंगा। आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड। टाइटल हम लोग वहां डाले थे, तो हम टाइटल ले लिए हैं। उसके बाद हम उसका फर्स्ट नेम डाले थे, फिर उसका लास्ट नेम डाले थे। कंपनी नेम हमेशा नीचे होता है, ओके। फिर उनका एड्रेस देते हैं। चलिए तो हम लोग उनका एड्रेस दे दिए, जिनका भी हो। एड्रेस लाइन 1, देन एड्रेस लाइन 2, देन हिज सिटी, देन हिज स्टेट, देन हिज zip code. Zip code means area code. Now the country. For helping the sender, we are also give the phone numbers, home phone number and
वर्क फ़ोन नंबर। तो ये हमने डिटेल डाल दिया। अब एक सब्जेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि ये एक इनविटेशन था तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। आई एम यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल यू। सर यू आर invited in our office for ऑफिस पार्टी। ऑफिस पार्टी में हमने इनको इनवाइट किया है। चलिए अब सबसे पहले अपना अंडरलाइन को मैंने बंद किया है। नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद जब हमने सब्जेक्ट लिख लिया, बाकी कंटेंट लिखना है, जैसे कि सर स्लैश दे के मैडम, या अगर आपको पता है कि सारे मेल हैं देन आई एम राइटिंग द सर। एंड देन जो भी ऑफिस कंटेंट आपको लिखना है, सर यू आर इनवाइटेड आवर ऑफिस बिकॉज यू हेल्प अस टू अचीव द गोल, वट एवर यू वांट। तो मैसेज कंटेंट लिखने के बाद लास्ट में अपना देना है, योर फ्रेंड और योर फेथफुली, वट एवर यू वांट। आई एम राइटिंग योर फ्रेंड। देन योर एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मेरा एड्रेस है नीतीश कुमार, ओके और जो भी मेरा एड्रेस है मैं वो एड्रेस वहाँ पे फिल कर दूंगा। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी राइट अ मेल मर्ज। अब यहाँ पर हमने इतना मेहनत किया, ये सब कुछ वहाँ डेटा डाला, सिलेक्ट रेसिपेंट में इंटर न्यू लिस्ट, टाइप न्यू लिस्ट किया और यहाँ पर ये सारा कंटेंट लिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? हमें तो कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। सो उन सबको देखने के लिए हमको सिंपल करना होगा प्रीव्यू रिजल्ट। हुआ? तो यहाँ पर एक आदमी का डेटा दिखा रहा है जो सबसे पहले लिखे थे, बाकी लोगों का तो ये हो गया, दूसरे का, तीसरे का, चौथा खाली था लेकिन फिर भी वो था वहाँ पे। अब क्या है कि हम लोग इसमें एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए किन्हीं का कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमको ऐड करना है तो वी कैन ऑल्सो एडिट द डेटा। उसके डेटा को हम लोग एडिट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड एंड ड्रॉप कर सकते हैं, फाइंड रिसिपेंट भी है। सो हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं जिससे हम लोग डेटा को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमको डेटा एडिट नहीं करना है। थैंक यू। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द मेल मर्ज। द लास्ट ऑप्शन, हाउ कैन वी फिनिश द मेल मर्ज। सो फॉर डूइंग दिस वन आई वांट टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ ऑल दिस वन। तो हम लोगों ने कितने पेज लिखा है पहले ये ध्यान देना है। हमने एक पेज लिखा है, क्या यहाँ पे दूसरा पेज है? नहीं। सो हम यहाँ पे प्रिंट आउट इसका लेंगे। तो कितने पेज का प्रिंट आउट आएगा? चलिए देख लेते हैं। ऑल कर रहे हैं क्योंकि एक ही पेज है, मैंने प्रिंट आउट के लिए दे दिया है। इसको डॉक्यूमेंट 1 में जा रहा है। चलिए इसको डेस्कटॉप पे लेता हूँ मैं ताकि हम लोग आसानी से इसे ढूंढ सके। तो मैंने अपना लोकेशन दे दिया है एंड क्लिक ऑन सेव। चलिए देखते हैं हमारा काम बना या नहीं। डॉक्यूमेंट 1 के नाम से था। चलिए इसको ओपन करते हैं। इट्स टेकिंग सम टाइम टू ओपन। तो यही था हमारा पहला डेटा मिस्टर एजे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेज है जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है। वी हैव 4 पेजेस। कितने पेज हमने प्रिंट किया था? 1 पेजेस। एंड व्हेन वी हैव द प्रिंट आउट ऑफ 4 पेजेस, हमने प्रिंट में कितने पेज डाले? 1 और हमको मिलता है 4। तो जितना भी हमारे पास डेटा होगा उतना हमको प्रिंट आउट मिलेगा, चाहे वो 100 हो, 100 प्लस हो, इट्स नॉट मैटर। ओके, so this is the way how can we use the mail merge and why we use the mail merge. So I hope you all understand this one, and with this content your unit 3 is completed. Thank you for watching this.